হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ডিছকাছ কৰিম প্ৰিপজিশ্যন। প্ৰিপজিশ্যনটো আমাৰ এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে যদি চিলেবাছখিনি চায় আৰু প্ৰিভিয়াছ পেপাৰখিনি যদি চায় বা চাইছে, তাতে আপোনালোকে নিশ্চয় এই কুৱেশ্যনখিনি পালে যে তাতে প্ৰিপজিশ্যন, আৰ্টিকল আৰু ডিটাৰমিনাছ এই তিনিটা কম্বাইন কৰি তেখেতে কুৱেশ্যন বনালে। চ' আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাব প্ৰিপজিশ্যন গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু HSLC যিটো সেৱা বোৰ্ড আমাৰ এইটো কণ্ডাক্ট কৰে, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ এক্সামখিনি কোনে কণ্ডাক্ট কৰিলে? সেৱা বোৰ্ডে। আৰু সেৱা বোৰ্ড মেইন প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিয়ে ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 9ৰ বেছৰ যি গ্ৰামাৰখিনি, এই গ্ৰামাৰ অনুযায়ী তেখেতে গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক দিছিল। মই পেপাৰখিনি যেতিয়া চাইছোঁ, চ' মই ভাবিলোঁ ক্লাছ 9-10ৰ বেছ অনুযায়ী এই টেন্স, প্ৰিপজিশ্যন, কাৰেক্ট টেন্স, ডিটাৰমিনাছ, আৰ্টিকলছ, ভইচ চেঞ্জ, নেৰেশ্যন গোটেইকেইটা শিকিলে খুব ভাল হ'ব। চ' এইটো কভাৰ কৰিম। যেনেকৈ প্ৰথম কুৱেশ্যনখিনি হ'ল এইটো প্ৰিপজিশ্যনৰ তিনিটা অপশ্যন, এনেকৈ MCQ বনাব তেখেতে, MCQ তিনিটা দি দিব। সেইটো ধৰি লোৱা MCQ অফ, ইন, ফৰ, আৰু সেইটো ব্লেংক দিব। ডু নট বষ্ট অফ ইউৰ হেল্থ, ইয়াত অফ হ'ব, অফ ইউৰ হেল্থ। অ'কে, চ' কুৱেশ্যনখিনি এতিয়া মই জাষ্ট এইটো যি আছে ইয়াত এই গোটেইকেইটা মই জাষ্ট এনচাৰখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ ডিছকাছ কৰিম যে ফ্ৰমৰ ইউজটো হ'ল তো কিয় হ'ল, কিহৰ কাৰণে ফ্ৰমটো আহিল, ফৰ কেতিয়া ইউজ হ'ব, অফ কেতিয়া ইউজ হ'ব, বাই কেতিয়া আমি ইউজ কৰিম। এই গোটেইকেইটা আমাক শিকিব লাগিব বেলেগ বেলেগ এটা এটা টপিক লৈ। দ্য লেম মেন লিভছ বাই বিগিং। অ'কে, হি অফটেন ছাফাৰ ফ্ৰম ইলনেছ, ছাফাৰ ফ্ৰম ইলনেছ, এই ফ্ৰমটো। আৰু এনেকুৱা হ'ল, এনেকুৱা যদি আপোনালোকে এইটো মোটামুটি যদি 50 বা 60 এনেকুৱা এইটো টেষ্ট ধৰি লোৱা, এইটো টেষ্টেই দি আছোঁ মই, সেইটো টেষ্ট যদি চাই আপোনালোকে কৰি লোৱা, তেনেহ'লে এটা জাষ্ট আইডিয়া, এক্সামখিনি কেনেকৈ পাছ কৰিবা, জাষ্ট আইডিয়া ল'ব লাগে। অ'কে, আইডিয়াটো মেইন, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত। I bought this pen for 5 rupees. Okay, for 5 rupees. Shoes are made. আচ্ছা, এইটো অলপ ধুনীয়াকৈ চাব। The butter from milk, মানে যিকোনো বস্তু আমি তৈয়াৰী কৰোঁ তাত মানে বেছিভাগ ইউজ হয় ফ্ৰম। আৰু ইয়াত যেনেকৈ এইটো ইউজ হ'ল, shoes are made of leather. অ'কে, of leather। কুৱেশ্যনখিনি পাব, আকৌ পাব। The student was sure of success. Okay, next question kini hol, I warned him dash driving so fast against, mane hol je drive fast korise, matlab moi iman dhuniyake okhomia etu explain koribo nwari, hindi olopman moi kom. Okay, matlab yahan pe bola ja raha hai, I hope apnaloke hindi khini gom paye। I warned him, मैं एटा वार्निंग दिलूँ, मैं उसको वार्निंग दिया कि तुम ड्राइविंग फास्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में मैं वार्निंग दिया। ओके, इंग्लिश का थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, थोड़ी सी बेसिक आपको पकड़ होनी चाहिए। तो अगेंस्ट में ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है? कोई भी वस्तु ऊपर की बात की जा रही है, ऊपर, ऑन द टेबल। ओके, जिस तरह मैंने बोला टेबल के ऊपर, द बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल, मतलब जो किताबें हैं वो टेबल के ऊपर रखा है। इन मतलब अंदर की बात हो रही है, ऑन मतलब ऊपर की बात हो रही है, अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध में बोलना, विपक्ष में बोलना। ठीक है, तो इस तरह के फ्रॉम मतलब कोई चीज़ किसी से बनाया जाता है, कहीं से कोई आ रहा है, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। जिस तरह ब्लाइंड मैन, ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट है, कोई बात नहीं। द ब्लाइंड मैन लिव्स बाय बिगिंग, बाय का यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई भी काम किसी की सहायता से, যিকোনোৰ সহায়ৰ অনুযায়ী আমি যদি এটা কাম কৰোঁ, তাতে আমি মানে সহায় বুলি ক'ব পাৰোঁ, मतलब एक सहायता के ऊपर आप कोई काम करते हैं। जिस तरह हम स्कूल जाते हैं तो किससे जाते हैं? बाय द बस, बाय द बाईसाइकिल। ओके, तो वहाँ पे बाय यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है, बाय हैंड, हम अपने लेटर को पोस्ट ऑफिस में जाके दिए, किससे दिए? हाथों से दिए, बाय हैंड। ओके, तो वहाँ पे बाय का यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नॉलेज दे दूंगा कि कैसे हो रहा है। सॉरी, मैं फ्लाइट मोड नहीं मारा था, सॉरी फ्रेंड्स, फ्लाइट मोड मुझे भूल गया था मैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है, ऑलवेज बीवेयर ऑफ
फ्लैश फ्रेंड्स, ओके, फॉल्स फ्रेंड, सॉरी फॉल्स फ्रेंड, फॉल्स तो जानते ही हैं, बेकार का, जिसका कोई महत्व ना हो। ए ग्रेडी मैन हैंकर्स आफ्टर मनी, ठीक है। अब और एक बात आता है कि यहाँ पे ना कुछ शब्द को देखकर पूरा याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे कि मनी के पहले आफ्टर की यूज़ किया गया था। आप अगर लास्ट ईयर का पेपर, मतलब अब बोलिएगा सर ग्रेड 3 ग्रेड 4 में ऐसा होगा, देखिए कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम, जो कंडक्ट कर रहा है सेवा बोर्ड कर रहा है, यानी सेवा बोर्ड में जो एग्जामिनर लोग हैं, जो क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, उसी बेंच का लोग इस क्वेश्चन को कंडक्ट करते हैं। बोर्ड तो वही रहता है ना, बोर्ड वही रहता है। ग्रामर के लिए उन लोग को बुलाया जाता है कि आप ग्रामर के 10-15 क्वेश्चन दीजिए ताकि एग्ज़ाम लिया जाए, तो वो लोग ग्रामर का क्वेश्चन ऐसा ही देता है। बिल्कुल, मैं खुद पेपर देखा, मुझे एक आइडिया लग गया कि हाँ सेवा बोर्ड अपना पकड़ को बनाए रखा है। ही सेंड द लेटर बाय हैंड, मैंने पहले ही बोला कि किसी की सहायता से कुछ काम करना, वहाँ पे बाई का यूज़ किया जाता है, ओके। ही सेंड द लेटर, उसने पत्र को सेंड किया, तो कहते हैं लेटर टू सेंड कोडिले, किहोर द्वारा, हाथोर द्वारा, हैंडोर द्वारा, बाई हैंड। द टाइगर लिव्स, जो टाइगर होता है वो रहता है, हाँ? रहता है, निर्भर रहता है, मांस के ऊपर निर्भर रहेगा, ओके, तो ऑन होगा। द शिप वॉज बाउंड फॉर इंडिया, द शिप वॉज बाउंड फॉर इंडिया, ओके, ये बाउंड किया गया है। तो मैं बस थोड़ी सी जो है आएगा। देखिए एट का यूज़ कहाँ पे होता है, कोई भी सिंपल जगह में, मतलब साधारण सा जगह जो छोटा प्लेस हो, वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। एट होम, एट बस स्टैंड, बस स्टॉप, एट जो भी है नियर मार्केट, जो भी है, एट मतलब कोई नाम हो सकता है, साधारण नेम, वहाँ पे एट का यूज़ होता है। इन का यूज़ तो बोला गया था। यहाँ पे देखिए इन स्पीकिंग जो भी है, मैं बस समझा रहा हूँ। अब इन का यूज़ को थोड़ा देखते हैं, थोड़ी सी इन का यूज़ को देखते हैं। अच्छा, वो फिर से नेट खोलने से असुविधा होगा, तो मैं यहीं से पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, बाद में हम सेपरेट सीखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को देखते हैं। वर्चू कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रू, ओके, आई वॉज अमेज्ड एट हिज कंडक्ट। अब विथ का यूज़ कहाँ होता है? देखिए ऐसा होता है कि विथ का यूज़ कंपैरिजन में विथ का यूज़ किया जाता है कि आपकी पत्नी आपसे छोटी है कि नहीं, वहाँ पे विथ का यूज़ होगा। कंपेयर करने में विथ का यूज़ होता है। सी इज़ गिफ्टेड विथ ए स्वीट वॉइस, तो यहाँ पे दो चीज़ का एक बात हो रही है। एक, उसको गिफ्ट मिला है अच्छी आवाज़, भगवान का देन है कि नहीं। मैंने बोला कि भगवान का देन है, तुम्हें इतना अच्छा आवाज़, इतना स्वीट वॉइस मिला है, ठीक है। यहाँ भी हमने कंपेयर कर दिया कि तुम्हारा जो आवाज़ है बहुत स्वीट है, अभी का जो नॉर्मल आवाज़ था, नॉर्मल साउंड था, उससे बहुत मीठा है तेरा आवाज़, कंपेयर कर दिया, तो इसलिए विथ का यूज़ आया है। देखिए सेंटेंस को देख के आप नहीं पकड़िएगा कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, तब तो प्रीपोजिशन को वहाँ पे ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक एग्ज़ाम की बात करता हूँ। आई कांट यानी आई कैन नॉट एग्री योर प्रपोजल टू योर प्रपोजल। और इंग्लिश का कुछ ऐसा भी सेंटेंस होता है जो हमेशा मुंह से बोला जाता है, आप पढ़ते भी है। ये देखिए ये वाला हमेशा यूज़ करने वाला शब्द को दे देता है, आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, ओके। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर माई टीचर्स, ओके, फॉर माई टीचर्स। यहाँ भी कंपेयर का बात आ गया विथ का कि आई एम सेटिस्फाइड, मैं सहमत हूँ, विथ यूर वर्क, तुम्हारे कामों से। यहाँ पे आई एम, मैं एक सिंगल पर्सन हो गया, यू एक सेकेंड पर्सन हो गया, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन हो गया। इन दोनों के बीच में एक कंपेयर का एक बात उठा है, दोनों के बीच में मिडिल पॉइंट आ गया है, तो इसीलिए विथ का यूज़ किया गया है। बातें को अच्छी तरह समझ में आया होगा शायद। आई एम सेटिस्फाइड, मैं सहमत हूँ, विथ यूर वर्क, तुम्हारे काम से। द बॉय वॉज चार्ज्ड, मतलब बॉय है, चार्ज लगाया गया, विथ स्टेलिंग, ओके। यू शुड बी पोलाइट टू योर सीनियर, यू शुड बी पोलाइट टू योर सीनियर। आई हैव ए
डिस्टेस्ट फॉर पॉप म्यूजिक, इस तरह करके है। मैं चाहता हूँ इन सबको लिख के याद बार बार पढ़ने से अच्छा होगा। इसमें बस समझना है, ठीक है, बस समझना है। ये तो फिर से रिपीट हो गया, आई वार्न हिम अगेंस्ट ड्राइविंग सो फास्ट, ऑलवेज बी वेयर, ये भी रिपीट हो गया। ग्रेट बुक डील विथ ह्यूमन प्रॉब्लम, अच्छा ये तो ठीक है। द टीचर वॉज एनॉयड विथ मी, टीचर, यहाँ भी देखिए कंपेयर का बात हो रहा है, यहाँ पे मुझे और टीचर के बीचों में कुछ कहा जा रहा है। मेरा मतलब टीचर से, और यहाँ पे मी, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे टीचर है, इसलिए विथ आया है, ठीक है। ऐसे करके आता है यार, क्या कुछ तरीका होती है जो यहाँ पे भी देखिए वैसा ही है। ही इज़ सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, उसकी कामों से वो सेटिस्फाइड है, तो विथ हिज यहाँ पे दो बातें हो गई। तो इस तरह करके याद हो जाना चाहिए। असम इज रिच इन मिनरल्स, कि असम मिनरल्स के अंदर, खनिज संपदा के अंदर बहुत धनी है, रिच है, धनी है। तो अंदर की बात हो रही है। असम किसके अंदर इतना धनी है, इतना रिच है? चहकी बुली कहो पारो, अखम आमार बहुत चहकी, कार भितरत मिनरल्स, सम्पदर भितरत। तो ये जो चहकी है, धनी है, किसके अंदर है? संपदा के अंदर है। तो यहाँ पे इनका यूज़ हुआ है, अंदर की बात की जा रही है। तो ऐसे करके मतलब आपको समझना पड़ता है कि फॉर का यूज़, टू का यूज़, विथ का यूज़, इन का यूज़, ऑफ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और बहुत सारा है। उसके बाद बहुत है, इस तरह करके कई सारे हम पढ़ेंगे। ये सबको लिख लेना है, लिख के पढ़ना है बार बार। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, तो सो वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत। आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, एक काम करता हूँ मैं, अब ये समझा दिया कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्ज़ाम में बन सकता है। अब हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सेपरेट डिस्कस करेंगे कि फॉर, ऑफ, एट, आफ्टर, बिफोर, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मोर, मैनी, आर्टिकल में ए, एन, दी, बिल्कुल सब कवर करेंगे। तो वो हम पढ़ना चाहते हैं और आराम से हम दिखाएंगे।